Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Aquarius Ascendant and the predictions for the month of July 2023. For your ascendant, the ascendant lord is Saturn and it is currently passing through the first house. So Saturn in the first house will continue to challenge you to build your skill set. It is going to put you in difficult situations and it is going to test your determination till the middle of 2025. Saturn in the first house also offers ample opportunities to develop your personality, and people with Saturn in the first house in their birth chart rise very slowly but ultimately to the top of the tree. So in the month of July, the ascendant lord continues to pass through the first house, but it has turned retrograde and it is going to continue in the retro motion till the middle of November. So Saturn will again start going back to the 12th house, and as a result it will activate the negative energies of the 12th house. So time frame from 10th of July to 5th of August is going to be a difficult time for you mentally. It will be a stressful time to navigate and you will not find peace in your heart, and this train will continue till the end of August. So people who are in foreign countries are actually already utilizing this negative energy of the 12th house, and that is why they will not face much problems. But for people who are located in their country of birth, it is my suggestion to involve yourself in the meditation part of your life and also explore the spiritual side of the things in this month. Alternatively, you can engage yourself in charitable institutions or NGOs and donate your money or time in order to utilize this negative energies of the 12th house in the month of July. If we look at other planets also, Mars and Venus are combining in the 7th house. So time frame for the first one third part of the month. So time frame from 1st to 9th of July is very good for building your business. Time frame from 1st to 15th July is also a very good time to spend with your spouse and rebuild your rapport with them in the case of conflicts. Time frame from 7th of July to 6th of August will also be very expensive, and you will end up spending money on the requirements that will be stated by your spouse. Most of the Aquarius ascendant people get a dominating spouse because the seventh house is ruled by the sign Leo, and Leo itself means king or queen. So your spouse always keeps on dominating you throughout your life, and Aquarius ascendant people struggle to create that harmony where both have equal say in the marriage, and this happens throughout their lifetime. So as I said, time frame till 15th of July would be a good time to build that harmony. But second half of the month will once again see your spouse starting to dominate you because the fifth house lord sun will move to the sixth house and it will start to create negation of the seventh house. So time frame from 16th of July to 15th of August will be once again the time when you will start to feel a little bit of conflict with your spouse, and you may also see yourself visiting the family members of your spouse in the second half of July. But overall you will find it very difficult to manage ego of your spouse in the second half of July. Jupiter is aspecting your seventh house and is creating opportunities for marriage, and this will continue till April 2024. So if you are single, then again time frame from 1st to 9th of July is very conducive for looking for a match. Jupiter is also your second and the 11th house lord, and both the houses denotes money. So that's why Jupiter is a very important planet because it rules both the primary houses of finance. Its current position in the third house would mean that you are going to run after money till April 2024, or you will start to assign more importance to the monetary aspect in your life. If I speak cash flow wise, then the first week of July, which is the time frame from 1st to 7th of July, is going to be good from the financial perspective. Mercury is the lord of your fifth house and will be moving to the favorable position on 25th of July in the seventh house. So if you're a student, then Sun is currently posited in your fifth house till 16th of July, and high performing students are going to get a reward in this month, especially in the time frame of 21st to 22nd of July, and then again from 30th to 31st of July. They will find that these dates will be very conducive for them to excel in studies as well as appearing for any kind of a
competitive exams. If you are interested in playing the speculation game or you actively deal in the stock market, then time frame from 7th to 9th of July is the best time for reaping gains. People who are in service sector will have an average month, but if I have to figure out what is the best time frame for them to excel in their jobs, that will be between 23rd to 27th of July, and they may find opportunities to progress at the workplace. Now you also need to know about certain days where you need to be cautious in the month of July, and these are the dates when you should avoid taking any key decisions and avoid all kind of arguments with your peers. So these dates for you in the month of July are 4th and 5th of July, 18th and 19th of July, and 23rd and 24th of July. Just be cautious during these 6 days. Overall, if you see, this is a month where you need to be mentally strong, involve yourself in charitable acts or meditation, explore your spiritual side of life, and try to maintain a harmony with your spouse or business partner. So that's the summary for you for this month. I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कुंभ लग्न के लोगों के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपके लग्न में शनि भ्रमण कर रहे हैं। ये यहाँ जनवरी 2023 में आए थे और सितंबर 25 तक यहीं बैठे रहेंगे। तो जब भी कभी शनि लग्न भाव से निकलता है तो व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ क्रिएट करता है, क्योंकि शनि का काम ही है व्यक्ति को डिसिप्लिन बनाना, और इसीलिए वो व्यक्ति के सामने नई नई तरह की चुनौतियां पैदा करता है, और इन चुनौतियों का सामना करते हुए दबाव और तनाव से गुजरते हुए व्यक्ति एक हीरा बन के निकलता है। यानी कि आपके पास ये समय में अपना स्किल सेट डेवलप करने का टाइम है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का समय है। लेकिन अगर आप जुलाई के महीने में देखेंगे तो शनि आपका पहली वक्री हो चुका है, और ये वक्री बन के 12वें भाव की तरफ जाना शुरू करेगा। तो 12वीं भाव की तरफ जाने की वजह से जो नेगेटिव ऊर्जा होती है 12वें भाव की, वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो आपके लिए 10 जुलाई से 5 अगस्त का समय बहुत मुश्किल रहेगा नेविगेट करने की दृष्टि से। आपको इस समय में काफ़ी मानसिक तनाव होगा, और आपको आपके हृदय में शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे, और ये स्थिति अगस्त तक बनी रहेगी। आप लोगों के लिए अच्छी बात यह रहेगी कि अगर आप अपने को मेडिटेशन में इन्वॉल्व करते हैं, या आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में जाके कुछ दान देते हैं पैसे का या अपने समय का, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप अपनी स्पिरिचुअल साइड को भी इस समय में एक्सप्लोर करने का प्रयत्न कर सकते हैं। जो अच्छी बात एक इस समय है कि जो भी लोग फॉरेन कंट्री में हैं, फॉरेन से मतलब है जहाँ पर भी आप पैदा हुए हैं उससे भिन्न किसी और देश में, अगर आप जुलाई के महीने में रहेंगे तो आपके लिए कुछ खास समस्या नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप 12वें भाव को देखें तो वहाँ से भी हम अज्ञात स्थलों को या अनजान जगहों को देखते हैं। तो फॉरेन में जितने भी लोग हैं उनको इस समय में कुछ खास परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जो भी लोग जहाँ पैदा हुए हैं वहीं रह रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। अगर बाकी ग्रहों को देखें तो मंगल और शुक्र आपके सप्तम भाव में युति बना रहे हैं। शुक्र और मंगल दोनों ही नैसर्गिक मित्र कहलाते हैं, और कभी भी आप देखेंगे तो शुक्र और मंगल डोमिनेटेड लोगों की जोड़ी हमेशा लंबे समय तक टिकती है, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे के प्रति खिंचाव या आकर्षण महसूस करते रहते हैं। तो अगर आप जुलाई के महीने की बात करें तो पहला 1/3 हाफ यानी 1 से 9 जुलाई तक का जो समय है, इस समय में आप अपने बिजनेस पर काम कर सकते हैं, उसको बड़ा बनाने के लिए, उसको प्रॉफिटेबल बनाने की दृष्टि से। और अगर आप अपनी स्पाउस के साथ भी इस समय बिताते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 1 से 15 जुलाई तक का समय आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप अपने पति या पत्नी के साथ संबंधों में सुधार कर सकें। जो बात यहाँ पर देखने लायक है वो ये है कि आपके लग्न के लिए आपका पति या पत्नी हमेशा आपके ऊपर डोमिनेंट रहता है, उसका दबदबा बना रहता है, क्योंकि सप्तम भाव में सिंह राशि पड़ती है और सिंह का मतलब ये राजा। और अगर आप मेल हैं तो आपकी जो वाइफ है बिल्कुल रानी की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ पर पूरे जीवन भर जो कुंभ लग्न के लोग होते हैं उनका अपने पति या पत्नी के साथ तालमेल बनाने में समय निकल जाता है। ऐसे विवाह जिसमें दोनों ही पार्टनर्स का एक मत हो या दोनों के ही रायों को आप एक तरह का वेटेज दें, ये इसके चक्कर में कुंभ लग्न के लोग लगे रहते हैं और वो उनको बैलेंस मिल नहीं पाता है। और
15 जुलाई तक का समय ऐसा है जब तक आप अपने पति या पत्नी के साथ समय बिता के उनको थोड़ा सा शांत करने का प्रयत्न कर सकते हैं, क्योंकि 15 जुलाई के बाद 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक के समय में आपका पति या पत्नी आपके ऊपर फिर से अपना दबदबा बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि सूर्य तब तक निकल के छठवें भाव में आ जाएगा और सप्तमेश का छठवें में जाना यानी कि फिर से आप वही स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आपका पति या पत्नी आपके ऊपर फिर से हावी होने लग जाएगा। इस समय में आप उनके परिवार वालों के साथ भी विजिट कर सकते हैं, खास करके द्वितीय हाफ में जुलाई के इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन आपको इस समय में आपके पति या पत्नी को रिस्पेक्ट देना है और उनकी ईगो को मसाज करते रहना है, नहीं तो फिर यह आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति बनेगी। गुरु आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं पांचवी दृष्टि से, तो जितने भी लोग सिंगल हैं अभी उनके लिए अप्रैल 2024 तक गोचर में ये गुरु शादी की दृष्टि से हरी झंडी दिखा रहे हैं। तो अगर आप अकेले हैं, अभी शादी करने में इंटरेस्टेड हैं, तो 1 से 10 जुलाई का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, जब आप अपने पार्टनर से जाके मिल सकते हैं, जो भी पोटेंशियल पार्टनर हो आपका उससे। गुरु आपके लिए द्वितीय और 11वें भाव के स्वामी भी बनते हैं और दोनों ही भाव धनदायक स्थान है, इसलिए गुरु आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह कहलाता है। और ये स्वयं तृतीय भाव से भ्रमण कर रहे हैं, तो द्वितीय का तृतीय भाव से भ्रमण यानी कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो जाता है इस समय में। जिनकी भी लग्न कुंडली में ऐसा योग रहता है द्वितीय तृतीय भाव में, वो हमेशा पैसे के पीछे पागल रहते हैं, उनको हमेशा इसी बात की सनक चढ़ी रहती है कि हम कितना पैसा कमाएं। तो आपके लिए गोचर में भी यही स्थिति बनेगी, तो अगले 1 साल तक अप्रैल 2024 तक आपके दिमाग में यही चलता रहेगा कि मैं कितनी जगहों से कितना पैसा कमाऊं, और पैसा या मॉनेटरी गेन्स आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएंगे जब तक गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर जुलाई के महीने की मैं बात करूं तो 1 से 7 जुलाई का है, यानी ओपनिंग हफ्ता है जुलाई का, यह आपके लिए कैश फ्लो की दृष्टि से सबसे अच्छा कहला सकता है। आपके पंचम भाव का स्वामी बुध छठवें भाव से भ्रमण करता रहेगा 24 जुलाई तक, और इसके बाद 25 जुलाई से 30 सितंबर तक ये सप्तम भाव में आ जाएगा, जो कि एक फेवरेबल स्थिति कही जा सकती है। लेकिन पंचम भाव में सूर्य भी भ्रमण करते रहेंगे 15 जुलाई तक, तो जितने भी होशियार छात्र हैं या जो लोग अपने स्टडीज में एक्सेल करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है। तो आपको 21 और 22 जुलाई और 30 और 31 जुलाई 4 दिनों में मौके मिलेंगे जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर सकें या आप पढ़ाई के क्षेत्र में अपना नाम कमा सकें। इसके अलावा अगर आप स्पेक्यूलेशन से संबंध रखते हैं, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कुंभ लग्न के लोगों को मैं शेयर बाजार में दिलचस्पी लेते हुए देखता हूं। पंचम में बुध की राशि पड़ती है और बुध का संबंधी व्यापार से आता है, तो यहाँ पर अगर आप शेयर बाजार में इंटरेस्टेड हैं तो 7 से 9 जुलाई तक का समय 3 दिन बहुत बेहतरीन समय है स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने की दृष्टि से। जितने भी लोग नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ये मंथ एवरेज ही कहूँगा मैं, लेकिन अच्छा या अनुकूल समय कहें नौकरी में आगे बढ़ने का तो वो 23 से 27 जुलाई तक का समय होगा। खास करके जैसे ही 24 तारीख को गुरु यहाँ पर नज़दीक आने लगेगा तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अब इसके अलावा कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब आपको सावधान रहना पड़ता है, और इन दिनों में आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालना चाहिए। इसके अलावा आपको लोगों के साथ उलझने से भी बचना चाहिए। तो आपके लग्न के लिए वो दिन जब आपको सावधान रहना है वो है 4 और 5 जुलाई, 18 और 19 जुलाई और 23 और 24 जुलाई। इन 6 दिनों में आप सावधान रहिए। अगर आप कुल मिला के ये महीना देखें तो इस महीने में आपको मानसिक तौर पर सशक्त रहना है। अपने आप को आप मेडिटेशन में इन्वॉल्व कीजिए, चैरिटेबल एक्ट्स में इन्वॉल्व कीजिए, कहीं पर भी एनजीओ में जाके अपना टाइम और समय दीजिए उन लोगों को जिनको आपकी ज़रूरत है। और अगर इनमें से कुछ भी आप नहीं कर पाएँ, शॉपिंग मॉल में जाके पैसा खर्च कीजिए। मैं एक बात यहाँ पर दोबारा बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग कहीं भी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं यानी कि अपनी प्लेस ऑफ बर्थ से दूर, उनको इस समय में कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बाकी लोगों को ये समय थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। और आपको इस महीने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है वो ये है कि आप अपने पति या पत्नी के साथ तालमेल बनाकर रखिए, उनको खुश रखने का प्रयत्न कीजिए। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।